अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने लेक्चर लिया था उसका मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, इसके बार-बार नेट हमारा कट रहा था, तो आज हम उसकी दोबारा से रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेज रही हूँ। तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी और वो लोग भी देख सकेंगे जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया। हमारी प्रेज़ेंटेशन इंशाअल्लाह आज की डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट हमने पिछला जो निम्रा ने क्लास ली थी या जो प्रेजेंटेशन की थी उसमें हमने काफ़ी we have gone through it, but it is a mere repetition of that. So what are the disorders? How you will define? Disorder of sexual development are conditions where the sequence of events described in previous lecture does not happen. The clinical consequences of this depend upon where within the sequence the variation occurs. Developmental disorder of sexual development may be diagnosed at birth with ambiguous or abnormal genitalia, but may also be seen at puberty in girls who present with primary amenorrhea or increasing virilization. तो कौन कौन सी टाइप्स हैं? Types of disorders of sexual developmental disorder of sexual development. So क्या क्या है? नंबर 1 46XY disorder of sexual development, जिसमें XY यू नो कि X जहाँ पर Y क्रोमोसोम होगा वहाँ पर मेल फिनोटिपिकली मेल होगा, लेकिन कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स इस तरह हैं कि ऑल्दो कैरियोटाइपिंग XY होगी लेकिन फिनोटिपिकली वो फीमेल होगी या होगा। ठीक है, तो 46XY क्रोमोसोम्स में कब फीमेल फिनोटिपिकली अ मेल विल बी प्रेजेंटेड एज फीमेल कब होगा? नंबर 1 व्हेन देयर इज गोनेडल डिसजेनेसिस। अब गोनेडल डिसजेनेसिस किन कंडीशंस में होती हैं? In this situation, the gonads do not develop into a testis despite the presence of an XY karyotype. इसमें 15% में वो केसेस होते हैं जिसमें SRY जीन नहीं होता। You know कि SRY gene is required to differentiate the gonads into a testis. So there is a mutation in this SRY gene which is present on Y chromosome. But in most of the cases, the cause is unknown. In complete gonadal dysgenesis, that is Swyer syndrome, the gonads remain a streak gonad and does not produce any hormone. तो नॉर्मली कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंटीमुलेरियन हार्मोन. Testosterone will causes virilization or development of the external genitalia, and anti-Mullerian hormone will act as it will inhibit the Wolffian duct to produce Mullerian duct to be changed into uterus and fallopian tubes. So if both testosterone when there is gonadal dysgenesis, both of these hormones will be deficient. So it will be a phenotypically female, and as there is absence of anti-Mullerian hormone, the uterus and vagina, upper vagina, and the fallopian tubes will develop, and it will be a tall, beautiful woman because this testosterone will as there is absence of testosterone and anti-Mullerian hormone, the testosterone which is testosterone will be absent, and it will be a beautiful lady with the presentation will be not with ambiguous genitalia, rather it will be a female at birth, and she will present at puberty with primary amenorrhea.
So the gonads do not function properly, and the puberty will be delayed, and this dysgenetic gonad has a high malignancy risk and should be removed when the diagnosis is made, right? So this is usually, these gonads are usually removed with the laparoscopy. And puberty must be induced with estrogen, and pregnancy has been reported with donor oocyte. क्योंकि यूट्रस जो है, यूट्रस विल बी देयर एंड ओवरीज आर नॉट देयर, बट she may become a surrogate mother by अगर कोई और इसको ओवम डोनेशन कर दे और उसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो और एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करके उसको हार्मोन से एड बैक दे सकते हैं. सो प्रेगनेंसीज आर रिकॉर्डेड इन दिस कंडीशन. कभी कभी मिक्स्ड गोनेडल डिसजेनेसिस होती है, एंड इन मिक्स्ड डिसजेनेसिस प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड ट्रू हर्माफ्रोडाइट. इसमें टेस्टिकुलर टिश्यू भी होता है और ओवेरियन टिश्यू भी होता है. सो कैरियोटाइपिंग में भी 46XX, but it may be a mosaic, there may be a mosaicism by of XX/XY. So दोनों किस्म के क्रोमोसोम्स इसमें होंगे. Y XX कॉम्बिनेशन भी होगा और कुछ सेल्स में XY कॉम्बिनेशन होगा. तो क्या होगा, इसमें ओवेरियन टिश्यू भी होगा और टेस्टिकुलर टिश्यू भी होगा. तो अगर टेस्टिकुलर टिश्यू हार्मोन प्रोड्यूसिंग हो और वो टेस्टोस्टेरॉन कुछ टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करे, तो ये जो पेशेंट्स होते हैं या ये जो they will present at, these girls will present at puberty with virilizing effect of this testosterone. So कभी कभी इस तरह होता है कि टेस्टिस एक साइड पे होता है और ओवेरियन टिश्यू दूसरे साइड पे होता है, ठीक है? तो उसमें दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट भी होगा और ओवेरियन का भी होगा. सो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, एक साइड पे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा, पेटेंट वेजाइना होगा, और दूसरी साइड पे टेस्टिस होगी और इसका साथ में टेस्टोस्टेरॉन भी होगा. तो इसमें इसकी मैनेज करना जरा मुश्किल होगा कि हम कौन सी उसमें जाएं, कि कौन सी सेक्स ऑफ रेयरिंग क्या होगी फ्यूचर में. तो अगर विजुअलाइजेशन ज्यादा हो गई है और हमने उस तरफ जाना है कि ये जेंडर चेंज हो सकता है, तो हम मतलब इसमें आपको प्रॉपर काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, साइकेट्रिस्ट की भी, रादर इट्स अ टीम वर्क जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन, सर्जन्स और साइकाइट्रिस्ट भी हो उसकी काउंसलिंग के लिए. क्योंकि एकदम से जब प्यूबर्टी में फीमेल से मेल की तरफ जाते हैं तो इट्स वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेशेंट. सो अगर टेस्टिकुलर फंक्शन प्रॉपर है तो हम उसकी ओवेरियन टिश्यू हटा सकते हैं, ठीक है, लेट इट बिकम अ मेल. तो काउंसलिंग करके बाकायदा, और उसके बाद जो है हम उसको उसका जेंडर चेंज कर सकते हैं. Then the next is next 46XY disorders of sexual development is complete androgen insensitivity syndrome. It occurs in individual where virilization of the external genitalia does not occur due to partial or complete inability of the androgen receptor to respond to androgen stimulation. तो receptors जो हैं वो androgen को रिस्पॉन्स नहीं करते और एंड्रोजन जो है उसका इफेक्ट नहीं होता उस पे रिसेप्टर्स पे. तो एंड्रोजन का इफेक्ट नहीं होगा तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल की तरह होगा, और इसके अलावा बाकी भी वो फीमेल ही होगी, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरॉन जो एडिपोज टिश्यू में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है टू ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन जो है वो उसकी फिर उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगी. लेकिन जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, यूजुअली दीज लेडीज विल प्रेजेंट विद एमिनोरिया, and at birth there may be some ambiguous genitalia, or they may be having a normal female genitalia, but when you do ultrasound of these ladies, they will not have uterus inside, right? And the breast will develop
due to transformation of this testosterone into estrogen. So the baby is born with normal female external genitalia and absent uterus and testes that are found somewhere in their line of descent through the abdomen from pelvis to the inguinal canal. So testes we have to remove these testes, because again there is a chance of malignancy in these testes. So we have to remove it. Presentation, again मैंने आपको बताया, presentation will occur at puberty with primary amenorrhea. Once the diagnosis is made, initial management is psychological with full disclosure of the XY karyotype and the information that patient will be infertile. उसमें हमने देखा था गोनेडल डिसजेनेसिस में, चूंकि एंटीमुलेरियन हार्मोन नहीं होता तो उसमें यूट्रस होता है और उसमें प्रेगनेंसीज भी रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी नहीं होती, बाकी एंटी मलेरियन हार्मोन ठीक होता है और उसके रिसेप्टर्स भी ठीक होते हैं, तो एंटी मलेरियन हार्मोन जो है वो उसकी इनहिबिशन करेगा मुलेरियन डक्ट की, और इसमें यूट्रस और ट्यूब्स नहीं बनेंगी. सो these girls will be infertile and they will present with amenorrhea. In case of partial androgen insensitivity, the androgen receptor can respond to some extent with limited virilization. The child is usually diagnosed at birth with ambiguous genitalia. अगर impartial, अगर partial androgenic insensitivity है तो फिर ambiguous genitalia के साथ at birth presentation हो सकती है. The next is 5-alpha reductase deficiency. In this condition, the fetus has an XY karyotype and the normal functioning testes does not, the normal function testes that produce both testosterone and AMH. However, the fetus is unable to convert testosterone to dihydrotestosterone. क्योंकि ये enzyme, this enzyme is required, this 5-alpha reductase is required to conversion to dihydrotestosterone. तो अगर dihydrotestosterone नहीं होगा तो इसका जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें प्रॉपर डेवलप नहीं होगा. एंड यूजुअली दीस पेशेंट्स प्रेजेंट एट प्यूबर्टी विद अदर विरलाइजेशन इफेक्ट्स ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, जैसे होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है, या इंक्रीज फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकती है, बालनेस हो सकती है, ठीक है. बाकी जो टेस्टोस्टेरोन के एक्शंस बाकी हैं बॉडी में वो उस पे एक्शन होगा, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वहां पर इसका एक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ this enzyme deficiency, because dihydrotestosterone is required for external genitalia. So in the Western world, the child is usually assigned to a female sex of rearing, but there have been description of few communities where transition from female to male gender at puberty is accepted. तो अगर उनको accepted है from female to male, तो along that side we will manage the patient. Then the next is 46XX disorder. The most common cause of 46XX disorder, congenital adrenal hyperplasia, right, leads to virilization of the female fetus. Congenital adrenal hyperplasia usually present at birth with ambiguous genitalia. Sometimes there is deficiency of mineralocorticoids too, ठीक है. अगर मिनरलोकार्टिकॉइड्स भी डेफिशिएंट हैं और कार्टिसोल भी डेफिशिएंट है, तो फिर क्या होगा कि पेशेंट को सार्ट लूजिंग सिंड्रोम हो जाएगा और उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है. सो एनी बेबी विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया, फर्स्ट वी शुड एक्सक्लूड कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया. इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम 21 हाइड्रोक्सिलेज. This hydroxylase is required to convert progesterone to deoxycorticosterone and 17-hydroxyprogesterone to deoxycortisol, right? तो अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे पास कार्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमारे पास 17-hydroxyprogesterone जो है वो बॉडी में रेज होगा. The reduced level of cortisol being produced drive the negative feedback effect
और नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट से क्या होगा, एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हो जाएगा. This lead to an excess of androgen precursors and then to elevated testosterone production. ठीक है. Raised androgen level in female fetus will lead to virilization of the external genitalia. The clitoris will enlarge and the labia will fuse, and the fused labia will come along the urethral orifice, और ऐसे लगेगा जैसे ये एक ही फेलस है और एक ही ओपनिंग है इंट्राइटस पे. ठीक है. और जो लेबिया होगा वो फ्यूज हो जाएगा और उस पे रूगीज भी होंगी एंड इट विल लुक लाइक स्क्रोटम. So what to do with these patients? Affected individual require lifelong steroid replacement such as hydrocortisone along with fluorocortisone for salt loser. Once the infant is well and stabilized on the steroid regime, surgical treatment of the genitalia is considered. तो traditionally हम क्या करते हैं, all female infant with congenital adrenal hyperplasia underwent feminizing genital surgery with the first year of life. अगर हम फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में नहीं करेंगे तो प्रेजेंटेशन फिर इसकी और हम इनको स्टीरॉइड्स पे नहीं डालेंगे तो एब्रप्ट इनका रेज होगा एंड्रोजन लेवल एट प्यूबर्टी, और उसमें क्या होगा, विरिलाइजिंग इफेक्ट्स होंगे, होर्सनेस होगी, बियर्ड बन जाएगी. ठीक है. और क्लाइटोरस इनलार्ज हो जाएगा. तो एक दफा अगर डायग्नोसिस प्यूबर उसमें नहीं हुई, एट बर्थ नहीं हुई, तो बाद में बहुत मुश्किल होगा इसका ट्रीट करना. So traditionally it should be treated in first year of life. This management is now controversial as adult patients with congenital adrenal hyperplasia are very dissatisfied with the outcome of their surgery and argue that surgery should have been deferred until they were old enough to have a choice. ठीक है. आजकल जो है तो वो ये कहते हैं कि हमारा अगर हमें मतलब हमारी बॉडी है, हमारा जिस्म है, तो जब तक हमारी कॉन्सेंट नहीं थी तो हमारा क्यों इस तरह किया गया कि क्योंकि विरिलाइजेशन बाद में भी होगी जब प्यूबर्टी की एज होगी. तो फिर वो कहते हैं कि अगर हम अपना सेक्स चेंज कर लेते लेकिन हमारी जो सर्जरी है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि एक दफा आप क्लाइटोरिस को रिमूव कर दो तो दोबारा फिर उसकी ग्रोथ उस तरह नहीं होती, सिवाय इसके कि हेयर प्रोडक्शन बॉडी पे ज्यादा हो जाएगी और होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी. तो वो इसका जेंडर बेचारा फिर ना फीमेल रहेगी ना मेल रहेगा, तो वो फिर करना मुश्किल हो जाता है. सो leaving the genitalia virilized throughout the childhood can be difficult for the patient to consider. पेरेंट्स के लिए करना बहुत मुश्किल है कि आप उनको समझाना और करना बहुत मुश्किल होगा. सो अगेन इट्स अ टीम वर्क जिसमें आपने साइकोलॉजिस्ट और को टीम में इन्वॉल्व करना है. साइकोलॉजिस्ट और सर्जन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टीम वर्क आपने करनी है इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए. ये ओ टेस्टिकुलर सेक्सुअल डिसऑर्डर हमने कर लिया. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक और आता है जिसमें एक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम XO, where partial or complete absence of one X chromosome is there and the total complement of chromosome is 45 in Turner syndrome, which result from a complete or partial absence of one X chromosome or partial or complete absence of one X chromosome. This is the picture of Turner syndrome. इसमें न सिर्फ क्रोमोसोम एक डेफिशिएंट होता है पार्शियल और कंप्लीट, बल्कि इसके साथ और एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं. टिपिकल पिक्चर होती है विच यू कैन डायग्नोज ऑन एट बर्थ एज वेल. इसमें वाइट स्पेस निपल होते हैं, वेब नेक होती है, लो सेट पोस्टीरियर हेयर लाइन होती है और इंक्रीज कैरिंग एंगल होता है. और इसमें साथ में कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा भी होता है. किसी किसी को कुछ पिगमेंटेड निवाई भी होते हैं बॉडी पे. तो आप देखेंगे शॉर्ट होते हैं, हाइट इनकी कम होती है और यूजुअली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो एट प्यूबर्टी प्रेजेंट करते हैं विद एमेनोरिया.
कभी कभी मुजेक इसमें आते हैं जिसमें XO और XX की मुजेसिज्म होती है, तो उसमें कुछ अरसे के लिए मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, मेनार्की नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है, बट यूजुअली दीज साइकिल्स गोज फॉर 1 or 2 years एंड फॉलोड बाय अर्ली फेलियर ऑफ द ओवरीज। तो इसके बाद इनको सेकेंडरी एमिनोरिया हो जाता है, लेकिन ज्यादा पेशेंट्स को जो है प्राइमरी एमिनोरिया होता है। Now, disorders of menstrual regularity. डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज में हम आज के उसमें लेक्चर में एमिनोरिया है और ओलिगोमिनोरिया है। तो एमिनोरिया किसे कहते हैं? दो टाइप्स के होते हैं एमिनोरिया, प्राइमरी एमिनोरिया एंड सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया आप तब कहेंगे when a girl failed to menstruate by 16 years of age, यानी इनिशिएशन ही नहीं होती, फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ मेनार्की बाय एज ऑफ 16 years. Secondary amenorrhea is defined as the absence of menstruation for more than 6 months in the absence of pregnancy in a woman of fertile age. And oligomenoria is defined as irregular periods, जैसे हमने आपने शुरू में नॉर्मल वो पढ़ा था इसका नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का कि कितना नॉर्मल साइकिल कितना होता है, इट इज 28 + - 7 days। तो अगर आप इसको प्लस करो 7 days 28 के साथ तो 35 days बनेंगे, और अगर माइनस करोगे तो 21 days बनेंगे। So the normal cycle is from 21 to 35 days. So if it is more than 35 days, it is called oligomenoria. Causes क्या होंगी? अब आप पूरा जो आपका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल एक्सिस है, इसमें कहीं भी ब्रेक आ जाए, कहीं भी किसी जगह पे भी ब्रेक आएगी तो उधर एमिनोरिया हो जाएगा। ठीक है, सो कॉजेज में क्या है? हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स हैं। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स में हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर अगर हो तो इसमें कौन सा होगा? हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होगा। हाइपोगोनेडोट्रोफिक यानी गोनेडोट्रोफिन नहीं रिलीज होगा और हाइपोगोनेडिज्म होगा। ठीक है, इसमें कॉजेस क्या होंगी? एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस एंड स्ट्रेस। ठीक है, देन हाइपोथैलेमिक लीजन्स। हाइपोथैलेमिक लीजन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? क्रेनियोफेरिंजियोमा हो सकता है, ग्लायोमा हो सकता है, और एनी ट्यूमर विच कैन कंप्रेस हाइपोथैलेमिक टिश्यू आर ब्लॉक डोपामीन। हेड इंजरीज इसमें हो सकती हैं। कालमन सिंड्रोम में ये है कि जो जीएनआरएच रिलीज करता है वो न्यूरॉन्स ऑल्फैक्टरी लोब से आते हैं और वो न्यूरॉन्स डेफिशिएंट होते हैं, तो वो जीएनआरएच रिलीज नहीं करता, साथ साथ चूंकि ये ऑल्फैक्टरी लोब से आते हैं डेफिशिएंट होते हैं, इसके साथ एनोस्मिया भी होता है। सो एनी पेशेंट विद एनोस्मिया एंड फेलियर ऑफ प्यूबर्टी, दोनों में हो सकते हैं, मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकता है। जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा और डिलेड प्यूबर्टी होगी और फेलियर ऑफ प्यूबर्टी होगी। Then systemic disorders like sarcoidosis and tuberculosis resulting in an infiltrative process in the hypothalamo-hypophyseal region. Drugs may be HRT or progestogen or dopamine agonists. देन कॉजेज में से पहले हाइपोथैलेमस, फिर इसके बाद पिट्यूटरी। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स विल आल्सो गिव राइज हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, यानी इसमें गोनेडोट्रोफिन्स कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? FSH और LH। सो हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म अगेन इसमें होगा with the following causes। क्या क्या हो सकती हैं? एडिनोमा हो सकते हैं पिट्यूटरी में, स्पेशली प्रोलेक्टिनोमा। देन पिट्यूटरी नेक्रोसिस किसमें होती है? जिसे कहते हैं शीहान सिंड्रोम। जब ऑब्स्टेटिकल किसी केस में हेमरेज ज्यादा हो जाए और पेशेंट शॉक में चली जाए तो पिट्यूटरी की शॉक की वजह से पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई कम जाती है और पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो जाती है। तो नॉट ओनली gonadotrophin hormones are affected, but also all the hormones which are released by pituitary, they are deficient. So hypothyroidism हो सकता है, और क्या हो सकता है? लैक्टेशन फेलियर होगा। ठीक है, क्योंकि वहां से प्रोलेक्टिन नहीं आएगा, तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये डेफिशिएंट हो जाएंगे, साथ में एमिनोरिया भी हो जाएगा।
देन हाइड्रोजेनिक कॉजेस क्या हो सकती हैं, कोई रेडियोथेरेपी हुई है या पिट्यूटरी कोई ट्यूमर था उसको रिमूव किया है, तो उस वजह से भी जो है एमिनोरिया हो सकता है। अगेन हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। और कंजेनिटल फेलियर ऑफ पिट्यूटरी डेवलपमेंट, कंजेनिटली एब्सेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड और उसमें भी सारे हार्मोन्स फिर डेफिशिएंट होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सेस में आएगा ओवेरियन डिसऑर्डर्स। ओवेरियन डिसऑर्डर्स में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगेन इट्स अ बिग topic and it will be taught by Dr. Anisa will tell you about polycystic ovaries in our next lecture, inshallah. Again, this PCOS usually present with oligomenorrhea or it may present with amenorrhea. Then primary ovarian failure. प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में अकर्स किन किन कंडीशन में हो सकते हैं ओवेरियन फेलियर? ओवेरियन फेलियर इज द काज ऑफ हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। इसमें जो है चूंकि फीडबैक नहीं होगा ओवेरियन फेलियर, ओवरी में से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक से FSH रेज होगा, ठीक है। सो द प्रेजेंटेशन विल बी हाइपरगोनेडोट्रोफिक, FSH LH इसमें रेज होगा बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट ईस्ट्रोजन, ठीक है। ओवेरियन फेलियर है, वहां ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा तो हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होगा। कॉजेज इसमें क्या क्या हो सकती हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की? ऑटो इम्यून हो सकता है और यूजुअली हम कब कहते हैं कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है? इफ ओवेरियन फेलियर्स अकर बिफोर द एज ऑफ 40। नॉर्मली 40 के बाद जो है ओवस कम हो जाते हैं ओवरीज में और मेनोपॉज शुरू हो जाता है, ठीक है। द एवरेज एज इज अबाउट 50 ईयर्स बस, लेकिन आप 40 ईयर्स के बाद किसी भी टाइम पर ओवेरियन फॉलिकल्स खत्म हो सकते हैं, ठीक है। देन ओवरी में हाइड्रोजेनिक कॉज हो सकती है, अगर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या कोई ऐसी चीज मिली है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज हुई है तो उससे एमिनोरिया होगा। देन एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स। एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स में क्या क्या डिसऑर्डर्स आएंगे? मुलेरियन डिफेक्ट्स एट द डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन सिस्टम। अगर मुलेरियन सिस्टम के डिफेक्ट्स हों, जैसे एब्सेंट यूट्रस है या रूडिमेंट्री यूट्रस है लाइक इन रोकिटेंस्की सिंड्रोम, और स्टीनोस सर्विक्स है, और स्टीनोस सर्विक्स में एक्चुअली एमिनोरिया तो नहीं होगा, उसको हम क्रिप्टोमिनोरिया कहते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो यूट्रस के अंदर कलेक्ट होता है और उसमें क्या होता है, यूट्रस के अंदर कलेक्ट होता है और उसको हम हेमेटोमेट्रा कहते हैं, ठीक है। कभी कभी जो है सर्विक्स पेटेंट होता है और अपर विजाइना में सेप्टम होता है, थिक सेप्टम, और अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे और पेशेंट को साइक्लिकली पेन होता है, मंथली पेन होता है उसको, और उसको एमिनोरिया होता है, जब हम उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें हेमेटोकाल्पस उस पर नजर आता है। कभी हेमेटोकाल्पस के साथ हेमेटोकाल्पस, हेमेटोमेट्रा और हेमेटोसाल्पिंग्स, सारा मतलब सारा मलेरियन सिस्टम अफेक्टेड होता है, सब में कलेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन द because of obstructive defect in the Mullerian system, कि वो ड्रेन नहीं हो रहा वहां से और कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। सो ये आप डायग्नोज कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे। देन एंडोमेट्रियम में दूसरा क्या डिफेक्ट हो सकता है? एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम किसे कहते हैं? एशरमैन सिंड्रोम यूजुअली प्रेजेंट विद सेकेंडरी एमिनोरिया, राइट। और इसमें ये होता है कि अगर कोई विगरसली एंडोमेट्रियल क्यूरेटाज करे फॉर एनी रीजन, इट मे बी डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक, तो अगर फर्ज करो इनकम्प्लीट एबॉर्शन है या कुछ और आपने थेरेप्यूटिक क्यूरेटाज किया है और आपने विगरसली इतना किया कि आपने एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एडिशंस इन द एंडोमेट्रियल कैविटी एंड इट विल कॉजेज adhesions and synechiae in the endometrial cavity, and the patients will have there will be no normal endometrium, so that the patient will have amenorrhea. So the treatment of this Eshelman syndrome is to
put an intrauterine contraceptive device and to give hormone replace this combined oral contraceptive pills for at least 3 months. तो जो थोड़ा बहुत एंडोमेट्रियम होता है वो रीजेनरेट हो जाता है. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट हमारी कहाँ से शुरू होती है? हिस्ट्री टेकिंग से. ठीक है. सो आप प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे और जिस तरह पेशेंट आपको हिस्ट्री देगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी एग्जामिनेशन करेंगे. सो फाइंडिंग फ्रॉम द हिस्ट्री शुड गाइड द एग्जामिनेशन. ये हमने पहले जब हम एग्जामिनेशन कर रहे थे उस पर जो लेक्चर था उसमें हमने यही कहा था कि आप अगर प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री के मुताबिक आप एग्जामिनेशन करेंगे. राइट. सो अ जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट शुड बी कैरिड आउट to assess body mass index, secondary sexual characteristics, hair growth, breast development using Tanner's scores, and signs of endocrine abnormalities like hirsutism, acne, abdominal striae, moon phase, skin changes. If the history is suggestive of pituitary lesion, an assessment with visual field is indicated. Sorry, ये दरमियान में ये चीज आप इसको छोड़ दें. असेसमेंट ऑफ विजुअल फील्ड इज इंडिकेटेड. इनमें क्या होता है? जिनमें एडिनोमा होता है पिट्यूटरी में, ये ऑप्टिक कियाज्मा को कंप्रेस करता है और इसमें बायोलेटरल हेमी एनोपिया होता है. तो आप लेटरल विजन पेशेंट का देखते हैं. ठीक है. अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको वो है पिट्यूटरी कोई एडिनोमा है. External genitalia and vaginal examination should be performed to detect structural outflow abnormalities. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मुलेरियन स्ट्रक्चरल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है हाई अप vaginal septum और स्टीनोस cervix, और sometimes it's a rudimentary or absent uterus, or demonstrate atrophic changes consistent with the hypoestrogenism. जब एस्ट्रोजन कम होगा बॉडी में, एमेनोरिया होगा तो एस्ट्रोजन कम होगा बॉडी में और विजाइना विल बी ड्राई. नाउ मैनेजमेंट में फर्दर क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग के बाद, एग्जामिनेशन के बाद हम करते हैं इन्वेस्टिगेशंस. सो प्रेगनेंसी टेस्ट शुड बी डन इन ऑल सेक्सुअली एक्टिव लेडीज. देन LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलिन, इसको हम कहते हैं हार्मोनल ऐसे करते हैं सर. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये तो आपने करने ही करने. ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो आप एमिनोरिया के पेशेंट्स पे करते हैं. ठीक है. TFTs आप तब करेंगे इफ क्लिनिकली इंडिकेटेड. अगर आपको ट्रेमर्स नजर आते हैं या आपको जो है कोई गाइटर नजर आता है या आपको जो है एक्सोफ्थैलेमस नजर आता है, मतलब आपको थायरोटॉक्सिकोसिस के या हाइपोथायराइडिज्म की कोई आपको स्टिग्मेटा मिलता है, देन यू विल गो फॉर TFTs. देन अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स में आप अल्ट्रासाउंड पे क्या क्या दे सकते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज देख सकते हैं आप, मुलेरियन सिस्टम के डिफेक्ट्स देख सकते हैं इसमें, या कोई ओवेरियन ट्यूमर देख सकते हैं. MRI ऑफ द ब्रेन, अगर आपको कोई हाइपोथैलेमिक लीजन सस्पेक्ट कर रहे हैं या पिट्यूटरी एडिनोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर MRI ऑफ द ब्रेन. स्टेरोस्कोपी आप कर सकते हैं एशरमैन सिंड्रोम में या सर्वाइकल स्टीनोसिस में. कैरियोटाइपिंग, आपको कोई एम्बिगुअस जेनिटेलिया लगता है या थोड़ी सी विरलिज्म है या ब्रेस्ट की डेवलपमेंट सही नहीं है या ब्लाइंड विजाइना है, तो आप उसमें कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं. नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे एमिनोरिया की? अगर लो बॉडी मास इंडेक्स है तो आप उसमें क्या करेंगे? डाइट एडवाइस देंगे एंड सपोर्ट. ठीक है. हाइपोथैलेमिक लीजन्स हैं कौन से? अगर ग्लायोमा है या कोई स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन है तो सर्जरी. ठीक है. हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया है तो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया अगर सिर्फ माइल्ड है, ज्यादा नहीं है, तो आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं. और अगर आपको कोई एडिनोमा फॉर एग्जांपल MRI पे नजर भी आ गया, इफ इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, देन यू कैन ट्रीट दिस पेशेंट विद ड्रग्स, डोपामीन एगोनिस्ट, केबरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन. और अगर इसको रेजिस्टेंट है या ट्यूमर जरा बड़ा है, देन यू कैन गो फॉर सर्जरी. प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में क्या करेंगे? HRT देंगे या कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल देंगे?
HRT में भी ईस्ट्रोजन होता है, कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल में भी ईस्ट्रोजन होता है, लेकिन कंबाइन पिल्स में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है और HRT में थोड़ा कम होता है, ठीक है। Polycystic ovarian syndrome, this Dr. Nisa will tell you on next Monday what is PCO and how you will treat it. इसकी different treatment है क्योंकि ये एक syndrome है और इसकी different presentations होती हैं और different requirements होती हैं patient की, तो आप उसकी मुख्तलिफ तरीकों से treatment करेंगे। Combined oral contraceptive pills दे सकते हैं cycle regularity के लिए, और चूंकि ये patient ज़्यादा infertile होते हैं, इनमें ovulation नहीं होती, तो इनमें हम ovulation induction करते हैं for subfertility, right? एशरमैन सिंड्रोम में हम करते हैं एडिसोलाइसिस करते हैं और आईयूसीडी इंसर्शन करते हैं एट द टाइम ऑफ हिस्टेरोस्कोपी, फॉलोड बाय कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल फॉर एटलीस्ट 3 months. सर्वाइकल स्टेनोसिस में अगेन आप हिस्टेरोस्कोपी करते हो एंड सर्वाइकल डायलिटेशन करते हैं। रेफरेंसेस सारा कुछ मैंने आपके 10 टीचर्स से ही लिया है, नो एक्स्ट्रा थिंग, नो अदर बुक वाज कंसल्टेड बिकॉज योर बुक इज सो मच कॉम्प्रिहेंसिव। यू कैन अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया है तो आपको सारा कुछ आ गया। आई इवन व्हेन आई गो थ्रू दिस बुक आई रिकमेंड इट फॉर part 2 examination as well. And when I was doing my TMOship, I used to go through this book for everything. So comprehensive. So thank you very much. Inshallah, I think this will be now, you will be satisfied with this lecture.